My dear students, let me tell you about myself. My name is Mainuddin, and in today's class, I am going to teach you about some things which are so vital and important for your English. Today, I am going to teach you from zero level to high. First of all, being a English student, from where should we start studying regarding English? I have seen many human beings. They understand English as complex a subject. No, but according to me, in my opinion, it seems to me that anyone can learn English easily too much. It takes times. If you say to me that, sir, I want to learn English and I want to speak English fluently and confidently in 2 months, in 3 months, it's impossible. It takes time, but after a point of time, automatically your English will be from here to there. Okay, it will take time, but you should have patience. So, without wasting time, we should move on. So, first of all, let me tell you. Okay, now how to learn English soon. So, in today's class, I am going to teach you from zero level. Now, see English. First of all, know what is English. Anyone can ask you because you are learning English. Anyone can ask you, could you please tell me what is English? Could you please tell me what is the definition of English? So, being a student, you must know about the definition of English. So, first of all, let's know about definition of English. English is a language which is spoken in this world widely is called English. Now see, English is a language which is spoken in this world widely is called English. Except this, you can see more definition of English. Next definition. English is an international language. N. English is an international language which is spoken in this world. English is an international language which is spoken in this world. So you can feel, you can see the importance of English through this definition. We all know about a lot of languages. A lot of languages are spoken in your country, but in those all languages, your English is super language. Your English is the most popular and famous language. It's not a national language, it's an international language. And if
you try to know about who is the father of English. Geoffrey Chaucer is called the father of English. But let it go. Now see, I explain you in Hindi. जो इंग्लिश आपका भाषा है ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से बोली जाती है. अगर आपके पास इंग्लिश का ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप यू कैन मूव एनी कंट्री इजीली. अंकुर सर इज कॉलिंग यू. सो लेट मी टेल यू, ये जो आपका इंग्लिश है बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस मॉडर्न टाइम दिस लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली. इसके अलावा इफ you don't have knowledge in English language, then you can't move on in abroad according to yourself. Suppose you want to go in America, okay, and you have only knowledge in Hindi language, you don't know about English at all. So how can you go in America? Even wanting, you can't move in America. You can't go in Australia, you can't go in Canada, because in those all countries only English is spoken. So at the time English happens very important. That's why English is said international language. तो अभी के समय में मॉडर्न टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. बट मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. विदाउट दिस आवर लाइफ इज नॉट so I can say, without this we are not so intelligent and smart. If you are having knowledge about this subject, that subject, but indeed you don't have knowledge about English, you are not able to say anything. If you are not able to express some things, if you are not able to introduce yourself in front of someone, if you are not able to interact with anyone, so you will not be considered as an intelligent human being. So you should have knowledge about English deeply. If you have knowledge in English, then someone will understand about oh, look at this guy, he is so intelligent, because he is speaking English fluently and confidently. And let me tell you, if you have knowledge in English language, then you can make money too much. You will get a lot of opportunities only due to this English language. Yes, nowadays I see many human beings who are making money too much. Why? Because they have knowledge in English too much. That's why. So we should move on. Did you write? Did you understand about this? Let's move on. Now see, it's your time to understand about some basic thing, because you know there are the pillar of everything. कुछ पिलर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती है जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जैसे आपको घर बनाना है, तो अगर घर का जो पिलर होता है अगर वह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या वो घर लास्ट कर पाएगा? क्या वो ज़्यादा दिनों तक वो टिक पाएगा? नहीं. कोई छोटी मोटी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, कोई आपदाएं हो जाती है, तो घर को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है. लेकिन अगर जो बेस है, जो पिलर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये संभावना हो जाती है कि आने वाले समय में वो बहुत दिनों तक वो लास्ट करेगा वो. ओके, सो सेम चीज़ें अप्लाई होती है. अगर आपका जो बेसिक जो चीज़ें होती है ना, जो आपका बेस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में, तो इवन वांटिंग यू कांट स्पीक एट ऑल. तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरी बेसिक लेवल से कि कैसे हम शुरुआत करें. हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट इंग्लिश, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टडी अबाउट इंग्लिश. सो इन टुडेज क्लास वी विल कंप्लीट दैट फुली. लेट्स मूव ऑन. नाउ सी, suppose I write a simple sentence. Okay, I am going there. If I say to you, what else are you looking in this sentence? Let me tell you one thing.
नाउ मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग देयर। अब ये देखिए, आई एम गोइंग एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया, देयर है। तो आई की अगर बात करें तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जो एम है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, अब ये देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट कि ये जो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अब सब्जेक्ट भी दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और इसकी संख्या 24, इसकी संख्या 24 है। अगर इसकी बात करें तो ये होता है मेन वर्ब। क्या है आपका? गोइंग, मेन वर्ब है। क्या है? इसको कहते हैं हम मेन वर्ब। आने वाले समय में ना मैं काफ़ी खंड खंड करके काफ़ी बारीकी ढंग से आपको सबके बारे में बताऊंगा, बट आप ये मोटे तौर पे रफली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एल्स इज फाउंड इन वन सेंटेंस। अब देखिए ये जो देयर है तो आप इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या है ये आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट हो गए। तो आपको याद होगा कि अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कुछ होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड वन नेम हो गया। ये सारी चीज़ें होती है। ये आपका सी है, सी हो गया। अगर हम वही बात करें ऑन द अदर हैंड प्लूरल सब्जेक्ट की, तो इसमें आप देख सकते हैं वी हो गया, यू हो गया, एंड दे होता है, एंड टू नेम्स। यस, सो ये आपका यू कैन सी दिस इन ब्रीफ। एक सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट के नहीं, एक सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। अब बारी बारी से देखेंगे। अब लेट्स मूव ऑन। ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब। इतना आपको समझ में आई ना बातें? आई के देखिए आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट भी दो तरह के हो गए। इसकी बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स मूव ऑन। Now, whatever I am going to teach you, you all have to focus in understanding those all things, whatever I am going to teach you. Verb of to be, okay? And next, verb of to have, okay? Now, to be का मतलब होता है होना। to be का मतलब, यस, अगर हिंदी की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो ये हो गया होना। टू हैव का मतलब होता है पास, पास होना। चाहे पास है, आप ये समझ सकते हैं कि पास है। अब देखिए, अब हम देखते हैं वर्ब ऑफ टू बी। सो अंडर टू बी यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस टू बी के अंतर्गत आप देखेंगे कि पी मतलब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया आपका। तो इसके अंतर्गत अब देखिए, आप यहाँ पे अगर बात करें तो ये पास्ट हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया, ओके। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें आपका हो जाता है सब्जेक्ट इज, आर,
एंड आपका एम हो जाता है इधर ऑब्जेक्ट हम कर देंगे। पास्ट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या हो जाता है आपका, यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है वाज, वेयर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट विल बी एंड प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी की व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट हिंदी, हाउ टू रिकॉग्नाइज, तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, ये फ्यूचर हुआ। तो अब इसमें क्या होता है ना कि आप प्रेजेंट हमेशा दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर उसके अंत में है, हो, हूँ, ये अगर आ गया, जैसे है, हो, चाहे हूँ, ये रहता है तो आप पहचानेंगे कि ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर इसकी बात करें तो था, थे, थी। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेंस फ्यूचर, गा, गे एंड गी। So finally I have jotted down how to recognize these all tenses one by one. तो हिंदी के अंत में है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी। अब एग्जाम्पल की बारी आती है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस ऑल स्ट्रक्चर्स। यू नो अबाउट दिस वेरी वेल, लेट्स अंडरस्टैंड। Let me small this, let me do this small. Is it looking? Yes, because I have to write. Yes, you have to note down. Now let's understand about this. अब इसे समझ लेते हैं। ये जो आपका दिख रहा है verb of to have, पहले इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी शुड स्टडी अबाउट दिस वन। पहला, इसमें है आपका पहला प्रेजेंट टेंस। ये आपका प्रेजेंट में था। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज, आर, एम एंड प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। मैं यहाँ हूँ। ओके, जैसे वे लोग वहाँ थे, है नहीं, थे। अब देखिए मैं खुश रहूँगा। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए, इसके अंत में हूँ आया, इसके अंत में थे आया और इसके अंत में गा, गे, गी, गा आया हुआ है। तो ये सेंटेंस, नाउ टेल मी, इट्स योर टाइम टू टेल मी फ्रॉम व्हिच टेंस इज दिस सेंटेंस कमिंग। ये प्रेजेंट का है और ये किसका है, पास्ट, और ये किस में है, फ्यूचर में है। अब बारी आती है कि हाउ टू ट्रांसलेट। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको मैं बता दूं कि आई के साथ हमेशा हम प्रेजेंट में एम लिखेंगे, अगर वही बात करें पास्ट में तो हम वाज लिखेंगे। ओके, और फ्यूचर की बात करें तो आप यहाँ पे विल भी, चाहे आप शैल बी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए मैं यहाँ हूँ तो क्या होगी इसकी अंग्रेजी, आई एम हियर हो गया। एंड नेक्स्ट, वे लोग वहाँ थे तो दे वर देयर, ऐसे हम बनाएंगे। नेक्स्ट, मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी हो गया। So that's how we will make sentences by using these all structures. Did you understand? Is it clear?
वी शुड मूव ऑन. ओके, अब आपका कौन सा बचा हुआ है? एग्जाम्पल हो गया. इसका मतलब ये हम लोगों ने अभी क्लियर किया कि आप सबको समझ में आई. यही होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं हम अपनी अंग्रेजी की. इट्स सिंपल, इट्स बेसिक ऑफ इंग्लिश. लेट्स मूव ऑन. अब आपका बचा हुआ है वर्ब ऑफ टू हैव. ओके, तो इसमें क्या होता है ना, पास है मैंने लिखा था. स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं. तो इसमें देखिए क्या होता है. नाउ सी, you will find same thing in this as well. प्रेजेंट हो गया आपका, यहाँ पे आपका ये पास्ट हो गया, एंड देन यहाँ पे फ्यूचर ये हो गया आपका. अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस ऑल स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट देन दैट व्हाट वी हैव रेड नाउ. सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस में नाउन. लेट मी टेल यू, the student who have not completed these all basic things, so he should keep writing with me. subject has, have plus noun. इसकी बात करें तो subject had and noun, or you can note down object, and in future subject will have plus noun, or you can write object. Now see, finally I have written the structure of this all present, past and future. अब पहचान, how to recognize in हिंदी. अब इसका मतलब ये होता है आपका, यस, पास है. यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड डीपली. ओके, पास है, इसका मतलब हो जाता है पास था. यहाँ पे होगा पास, पास होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ सी, it's your time to make one sentence by using these all structures. Example, now see, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एग्जाम्पल, मेरे पास दूध है. ओके, यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास दूध था. ओके, अब मेरे पास दूध होगा. मेरे पास दूध होगा. नाउ लेट्स मेक 1 2 and 3. मेरे पास दूध है. अब नाउ टेल मी, which structure will be used in making this one sentence? Who will tell me? कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? फर्स्ट का होगा, प्रेजेंट में. क्यों होगा? क्योंकि इसके अंत में है इसलिए. तो देखिए, अब मेरे के लिए यहाँ पे हम माई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे. आई हैव मिल्क. अब देखिए, मेरे पास दूध था तो आप लिखेंगे आई हैड, आप लिखेंगे मिल्क, एंड नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास दूध होगा तो आई विल हैव मिल्क. आई विल हैव मिल्क. So finally I have translated these all sentences one by one, and you can change these all sentences in negative. जैसे मेरे पास दूध नहीं है तो I don't have milk हो जाएगा. चाहे I have no milk. मेरे पास दूध नहीं था तो I did not
हैव मिल्क हो जाएगा, और आई विल नॉट हैव मिल्क हो जाएगा। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? नाउ लेट्स मूव ऑन। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, नोट नंबर 1, ये बहुत वाइटल हो जाता है। यू, वी, दे एंड टू नेम्स। देखिए ये जो आपका यू है, यू, वी, दे एंड टू नेम्स, और यू कैन टेक आई, इन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट का है। ये किसका है आपका? ये प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में है तो हम हैव के यूज करेंगे। अगर यही चीज अगर आपका यहाँ पे पास्ट में अगर आ जाता है, पास्ट में, तो अब क्या करेंगे कि हम हैड का यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप? और यहाँ पे क्या होगा, हैड का तो होगा, बट सबके साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ हैड का ही यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा नोट नंबर, अगर नोट नंबर 2 की बात करें तो सी, ही, इट, वन नेम। ओके, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। और इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट में होगा हैज का यूज। अगर हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में भी हम इन सब के साथ हैड का ही यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले फ्यूचर की, विल हैव, तो फ्यूचर में भी सबके साथ, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? इसके अलावा लेट्स मूव ऑन। verb of to be and to have, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता दूं तो टू बी में हमने क्या क्या देखा। अभी टू बी के अंतर्गत हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा। एक प्रेजेंट में था, एक पास्ट में था, एक फ्यूचर में था। और अगर इसकी बात करें रिवाइज, एक्चुअली वी आर रिवाइजिंग दिस वंस अगेन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसमें भी 3 चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक था प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, यही ना। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा, इसमें था सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट था। इसकी बात करें तो सब्जेक्ट था वाज, वेयर था प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करेंगे, एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज वेयर। अब इसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि सब्जेक्ट और क्या था, विल बी, चाहे आप
शैल बी का भी यूज कर सकते हैं अ प्लस में ऑब्जेक्ट। इधर क्या देखा था हम लोगों ने, सब्जेक्ट था एंड आफ्टर दैट हैज हैव अ प्लस में नाउन था। इधर था सब्जेक्ट हैड अ प्लस में नाउन या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप। सब्जेक्ट और विल हैव अ प्लस में इधर नाउन था। इन ब्रीफ once again I explained you. I hope you all have understood about to be and to have. Now is it clear? Let's move on. इसके अलावा अगर आप ये जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी सी सम बेसिक मॉडल्स। Some vital मॉडल्स। अब देखिए आपका ये मैंने लिखा कैन और मे माइट, इन तीनों का मतलब अगर हम देखें तो हो जाता है सकता है। क्या लिखा मैंने, इनका मतलब होता है सकता है, सकती है। अगर देखा जाए तो ये 100% हो जाता है ऐसे समझने के लिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है 50%, इसकी 25%। सपोज लेट्स राइट सम एग्जाम्पल। अगर मैं कहता हूं कि आई कैन वर्क, मतलब मैं काम कर सकता हूं। 100% इसमें ये संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी कि मैं काम कर सकता हूं। बट अगर मैं ये कहता हूं आई से आई में वर्क इंस्टीड ऑफ सेइंग आई कैन वर्क, आई में वर्क, तो इसमें क्या है कि मैं काम कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट, आई माइट वर्क, मतलब मैं ये सोचिए, आप ये समझ आइए कि इसमें काम होगा ही नहीं, मैं काम नहीं कर सकता हूं। हालांकि ये बता रहा है बट इसमें संभावना है 25% काम होने की। अब आप किसी से बोलेंगे ना कि आई माइट डू योर वर्क, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये हमारा काम बढ़िया से करेंगे, मतलब वो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कहता है कि आई कैन डू योर वर्क, इसका मतलब वो आपका काम कर देंगे, 100% इसमें श्योरिटी है। तो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट कैन? कैन क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेट्स सी अबाउट शुड। नाउ शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। इसके अलावा एक होता है मस्ट, मतलब अवश्य। अवश्य निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं। अब दोनों का मतलब है, अब जब व्हेन यू विल सी मैनी सेंटेंसेस देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आई से आपको पढ़ना चाहिए। ओके, आपको पढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आई से आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको अंतर दिख रहा होगा। अगर सामने वाला कोई आपसे कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो
ये ऐसे बोला गया कि आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी हो जाएगा, बट आपसे कोई कहता है कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है, थोड़ा अगर देखा जाए तो नैतिक रूप से आपको बताया जा रहा है कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना, हाँ उस पर हम फोर्स करते हैं, जोर देते हैं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। सो लेट्स ट्रांसलेट। आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले का क्या होगा? आपको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रेड। रेड चाहे स्टडी भी बोल सकते हैं। अब देखिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे? यू मस्ट स्टडी। अब समझ में आई कि मस्ट में और शुड में क्या अंतर है। एंड अभी मैंने आपको बताया कैन, मे, माइट, इसके अलावा शुड, मस्ट, ये हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ये बेसिक मॉडल्स है। इसके अलावा और भी अभी पढ़ना है, बट इनिशियली यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल मॉडल्स, हाउ टू यूज एंड एक्सेप्ट दिस। अब व्हेन इट कम्स टू creating and making structures, without structures can we make sentences? No. So I will have to create now, let me fix this here. अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर्स की बारी आती है तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कैन, अब प्लस में जो वर्ब का पहला रूप होता है उसी का यूज करेंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला हो गया। आइए दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात कर ले। सब्जेक्ट हो गया, में हो गया, प्लस वर्ब का पहला ही रूप सेम ही होगा। तीसरे की बात कर ले तो सब्जेक्ट MIGST, माइट, एंड वर्ब का पहला रूप एंड ऑब्जेक्ट हो गया। चौथे की अगर बात करें हम, तो क्या देखा था हम लोगों ने? शुड और मस्ट के बारे में देखा था हम लोगों ने। तो सब्जेक्ट शुड एंड वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया। फिफ्थ की बात करें तो सब्जेक्ट एंड मस्ट एंड वर्ब का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट। सो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, by using these all structures you can make a lot of sentences according to yourself, and in talking, in understanding English, actually these all structures are used too much. If you don't know about these all structures, even wanting, you will not able to speak English. So we extremely need these all structures. We must know regarding these all structures. Without this, our English looks weak too much. So I hope you all have understood regarding this some basic and important models. Is it clear now? तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रहने देना चाहिए, because we will complete more about vital structures and things next day in next class. So that's all for today, and I hope that you all have understood regarding these all things, and take care of yourself, and we will meet in next class. So thank you very much for watching this video. See you.